So this is the sum we will be doing now in this lecture. A, B and C, who are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. So there are three partners. They are sharing profits in the ratio 2:2:1. A will get 2 share of profit, B will get 2 share of profit, C will get 1 share of profit respectively. Decided to convert their firm into X LLP. तो नया बिजनेस का नाम रहेगा X LLP. The balance sheet of the firm on the date of conversion shows the following position. Creditor was 12,000, bills payable 750, general reserve 3,000, capital A, B, C 15,000, 14,000, 8,500. In the asset side, we can see building, plant and machinery, motor van, furniture, stock, debtor, investment and cash at bank are the assets present in the partnership business. And business is getting converted into a LLP business, limited liability partnership. XLLP to take over the following assets at values shown below. So building लेके जाएंगे 16,000 में, plant and machinery 8,250, furniture 1,000, stock 3,900, goodwill का value दिया है 2,000. Goodwill is given 2,000. Debtor subject to 5% reserve for doubtful debts. So debtor 13,000 है, minus 5% करेंगे तो debtor का new value मिलेगा. The LLP is to take over sundry creditors at rupees 11,000. तो creditors का नया value दिया है 11,000. Creditors new value is given 11,000. Old value was 12,000. Purchase consideration was paid by the LLP by credit to A 10,000, B rupees 14,170, C rupees 8,330 in the capital of LLP. तो LLP का नया कैपिटल दिया है, तीनों पार्टनर्स का न्यू कैपिटल LLP बिजनेस में कितना होगा दिया है प्रीवियस सम. तो दिस इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट डिस्चार्ज ऑफ पीसी. ए का कितना रहेगा न्यू कैपिटल, बी का कितना रहेगा, सी का कितना रहेगा, क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. इन द प्रीवियस सम ऑल्सो it was given in the question what will be the future capital of the partners in the LLP business. Here also it is given. हम net asset method से PC calculate करेंगे, net asset method से PC निकालेंगे और उसको ऐसे divide करेंगे तो हमारा PC का amount tally भी हो जाएगा. The firm sold investment for rupees 4,000. मतलब इन्वेस्टमेंट को नया फर्म लेके नहीं जा रहे. LLP बिजनेस जो शुरू किया है वो इन्वेस्टमेंट लेके नहीं जाएगा क्योंकि फर्म विल सेल द इन्वेस्टमेंट and pay off the bills payable fully. Means bills payable also will not be taken over by the LLP. उसको क्या करेगा ना, जो ओल्ड बिजनेस है बिल्स पेबल को पे ऑफ करेगा फुल्ली and motor van will be taken over by A at book value. Motor van है देखो, motor van in the asset will also not be taken over by the LLP because इसको A लेके जाएगा अपने घर book value में. कौन से value में? Book value means balance sheet value, means 6,000 में लेके जाएगा. And what is given? The firm paid realization expense of rupees 400. Realization expense पे करेगा firm
तो कितना पे करना पड़ेगा 400. Prepare necessary ledger accounts in the book of Mrs. ABC, which is a partnership firm, and prepare balance sheet of X Limited as on 31st March 2019. But हमारा पहला स्टेप रहेगा to calculate the purchase consideration. तो इसमें हम क्या लिखेंगे पहले? Let us write the assets. Let us write the assets. कौन सा असेट यहाँ पे दिया है देखो, लेकिन ये पूरा आ जाएगा ना, तो एक काम करते हैं, लेट मी राइट इट हियर, फिर कॉपी कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं. सो यहाँ पे 16,8250 ये रिवाइज वैल्यूज है, सारे असेट्स का रिवाइज वैल्यूज दिया है. इसके अलावा कोई असेट है? लेट अस सी एनी अदर असेट इज गिवन. Let us check in the balance sheet. बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, हमने भी लिखा प्लांट एंड मशीनरी. फिर प्लांट एंड मशीनरी के बाद we have motor van. Tell me, will motor van come in the PC? It is not taken over by the LLP business, तो वो PC में नहीं आएगा. PC में वही assets आएगा जो LLP business will be taking over. फर्नीचर है, स्टॉक है. डेटर इज सब्जेक्ट टू आरटीडी. डेटर नहीं लिखा है, बट डेटर इज सब्जेक्ट टू आरटीडी. इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकन ओवर. कैसे मालूम इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकन ओवर? क्वेश्चन में दिया देखो, फर्म सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 4,000. एलएलपी बिजनेस नहीं लेके गया, इससे फर्म ने उसको सेल किया और बिल पेएबल पे ऑफ कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर दिया. मोटर वैन जो है वो ए लेके जाएगा. सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, कैश वैन, हमें कुछ असेट्स को सेल करना है, कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस ये सबको सेटल करना है, तो कैश वैन हम पीसी में नहीं लेंगे बिकॉज सम लायबिलिटीज हैज टू बी पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैज टू बी पेड. एंड क्वेश्चन में बोला गया है फॉलोइंग असेट्स टेकन ओवर एट द वैल्यू शोन बिलो. डेटर्स का क्या है 5% आरटीडी. डेटर का वैल्यू देखो कितना है 13,000. तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स 13,000 minus 5%. How much are you getting new value? 1,2,350 is the new value of debtors. इसके बाद क्या करेंगे, let us add. इसके अलावा कोई असेट्स नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे, ए मिल जाएगा और लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स, नया वैल्यू दिया है 11,000. बिल्स पेएबल will be paid off by the firm. So LLP business is not taking over. General reserve partners में divide होगा. Reserve is a profit, will be divided among the partners. It's not a external liability. So only one external liability is there. LLP take over creditors at 11,000. So यहाँ पे हम लिखेंगे only one external liability is there. Creditors, we will write here
11,000. सो टोटल में बी लेस इधर लिखा बी कितना हो गया ये 11,000 माइनस करो यू विल गेट द परचेज consideration. This is A minus B. See how much you get. पहले तो यहाँ assets का total निकालो 43,500 minus 11,000. How much you get? 32,500. This is the value of PC. अब यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ पीसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया कि नए बिजनेस में इंडिविजुअल पार्टनर का कैपिटल क्या होगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो गो टू द क्वेश्चन. हाउ मच इज द consideration? The consideration was paid by the LLP. Purchase consideration was paid by the LLP. Credit to A 10,000. B 14,170, C 8,330. तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ मच इट इज गेट वी आर गेटिंग 10,000. B का कितना मिल रहा है 14,170 एंड C का मिल रहा है 8,330. टोटल देखो 32,500 आता है क्या. Add all the three. देखो परचेज कंसिडरेशन का ही अमाउंट आता है क्या. आर यू गेटिंग दिस व्हेन यू ऐड द 32,500. क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज गिवन थ्री पार्टनर्स का न्यू कैपिटल इज गिवन 10,000, 14,170, 8,330. तीनों को ऐड करो पीसी का अमाउंट मिल गया. क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग. सबसे पहला स्टेप अब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज कुछ असेट्स को लायबिलिटीज को सेल ऑफ भी हो रहे पे ऑफ भी हो रहे तो कैश बैक अकाउंट भी और एलएलपी एक्स एलएलपी अकाउंट न्यू बिजनेस का अकाउंट बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना बाद में करेंगे. तो सबसे पहले रियलाइजेशन में पहला स्टेप टू असेट्स. गो टू द बैलेंस शीट. सारे असेट्स को लो बुक वैल्यू में. सारे असेट्स को बुक वैल्यू में लेते हैं बट कैश बैंक को नहीं बिकॉज उसका अलग से अकाउंट प्रिपेयर करने वाले. राइट ऑल द अकाउंट्स एक्सेप्ट कैश बैंक. गेटिंग माय पॉइंट. कैश बैंक क्यों नहीं लिखा इधर बिकॉज कैश बैंक का अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसलिए कैश बैंक को छोड़ के बाकी सारा असेट्स को लिख दिया. तो यहाँ पे let us write down all the book value, balance sheet value of the assets. Balance sheet value of the assets. अब इसके बाद कैश बैंक का वैल्यू कितना है 3650. So go to the cash bank account. Cash bank is a asset. So debit balance होगा how much 3650. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बाय. अब लाइबिलिटीज को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है. So write down what external liabilities we have. Only two, creditors and bills payable 12,750. So we will come here
12,000 and 750. लिख लिया लाइबिलिटीज भी. नेक्स्ट स्टेप, इफ यू रिमेंबर, पहला स्टेप असेट्स को ट्रांसफर करते बैलेंस शीट वैल्यू में, दूसरा स्टेप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते, तीसरा स्टेप पीसी ड्यू. पीसी का अमाउंट लिखते हैं एक्स एलएलपी, नया बिजनेस का नाम, और इधर लिखेंगे पीसी ड्यू. पीसी का अमाउंट कितना है 32,500. क्या हम एक्सएलएलपी अकाउंट भी बना रहे, तो बाई का ऑपोजिट 2 में रियलाइजेशन अकाउंट 32,500. Now see whether is there any asset not taken over by the business. There are two assets, one investment जिसको हमने सेल कर दिया, कितने में 4,000 में. क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल कर दिया 4,000 में. तो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली इधर है, ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में, कैंसिल करेंगे तो यहां लिखेंगे, बट सेल किया ना, सेल किया तो क्या आते हैं कैश. ब्रैकेट में लिख सकते इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड. कितना अमाउंट में सेल किया. क्या हम कैश बैंक अकाउंट बना रहे, यस. सो कैश बैंक में बाई का ऑपोजिट, बाई कैश बैंक का ऑपोजिट टू रियलाइजेशन, ये हो जाएगा 4,000. इसके बाद एक और असेट है मोटर वैन, जिसको कौन लेके गया ए. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन बुक वैल्यू में, बैलेंस शीट वैल्यू में ए टुक ओवर द मोटर वैन. मोटर वैन इज इन द डेबिट 6,000. ऑपोजिट लिखेंगे तो बाई हु इज टेकिंग एस कैपिटल अकाउंट. क्या है ये मोटर वैन. कितना अमाउंट 6,000. क्या हम ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो बाई का ऑपोजिट टू रियलाइजेशन, ए में लिखेंगे 6,000. दिस इज ऑल्सो डन. दो असेट्स थे जिसको नया एलएलपी बिजनेस नहीं लेके गया, दोनों लिख दिया. अब लाइबिलिटी भी है, बिल्स पेएबल पेड ऑफ. सी रीड दैट लाइन. द फर्म सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 4,000. सेल करेंगे तो पैसा आएगा, फर्म ने किया तो हमने रियलाइजेशन में, दूसरे साइड में बाई कैश में पैसा आ रहा है. एंड पेड ऑफ बिल्स पेएबल फुल्ली. बिल्स पेएबल को पे किया फुल्ली. बिल्स पेएबल का वैल्यू है, बिल्स पेएबल का वैल्यू है 750. पूरा पे किया. बिल्स पेएबल क्रेडिट में है, पे करेंगे तो ऑपोजिट साइड 2, पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट कैश बैंक अकाउंट. इधर क्या लिखेंगे बिल्स पेएबल पेड. कितना पे होगा 750. रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे किया है. इन द क्वेश्चन सी द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 400. रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना, बोलो प्रॉफिट एक्सपेंस है क्या इनकम है. रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना इनकम है या एक्सपेंस है. एक्सपेंस है. एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस ही होगा ना. सो यहाँ एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इधर लिखेंगे कैश बैंक. अगेन पे करेंगे तो पैसा जाएगा. इधर लिखेंगे क्या है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे
अमाउंट इज 400। अब बाई का ऑपोजिट, सॉरी 2 का ऑपोजिट, 2 कैश में है ना, 2 साइड में रियलाइजेशन का, सो 2 का ऑपोजिट कैश बैंक में किधर आएगा, बाई में आएगा। नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। 2 बार है, अलग अलग भी लिख सकते हैं या दोनों ऐड करके भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 750 एंड 400, 1150, ये हो गया। इसके बाद we will pay close this account, we will close the realization account। close this realization account 51 to 50, तो यहाँ लिखेंगे 55 to 50, करेक्ट आंसर 55 to 50। सो हमें क्रेडिट साइड में मिला 55 to 50, 12,750, 32 500, 4,000 and 6,000, we get 55 to 50। नाउ ये प्रॉफिट है, किसको मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1 गिवन इन द क्वेश्चन। 2 + 2 + 1 is 5, 2/5, 2/5, 1/5। तो कितना प्रॉफिट आया जरा देखो, 4,500 आया। एक मिनट, तो यहाँ पे we will write 4,500। इसको डिवाइड करना है कैसे, 2/5, 4,500 को ये रेशियो में डिवाइड करो, divide 4,500 in this ratio, 1,800, 4,500 into 2/5, 4,500 into 2/5 and 900। Very good, so this is done। इसका ऑपोजिट इफेक्ट पास करना, 2 का ऑपोजिट बाय रियलाइजेशन, लेकिन वो करने से पहले कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कितना देखो क्वेश्चन में, 15,000, 14,000, 8,500 और 3,000 का जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना, 15, 14, 8.5। So what we will do here, 15,000, 14,000, 8,500, 3,000 को 2:2:1 में डिवाइड करो। ओके, सी जनरल रिजर्व इज अ सेविंग, जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से, कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग है 2:1, सो 1,200, 1,200 एंड 600। नाउ अभी प्रॉफिट आया वो भी लिख लेते, ट्रांसफर करते। प्रॉफिट कितना आया, 1,800, 1,800, 900। सो बाय 2 पार्टनर्स कैपिटल will become by realization 1,800, दूसरे में भी 1,800 और यहाँ पे 900। देखो इसके बाद हमारा जो एलएलपी बिजनेस है, इसका न्यू कैपिटल दिया, डिस्चार्ज ऑफ पीसी देखो, बाय
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। डिस्चार्ज ऑफ पीसी देखो कैसे किया है, ये अमाउंट चाहिए हम लोग को 10,000, 14,750, 8,330। तो ऐसे 32,500 को डिवाइड किया है पार्टनर्स में। 32,500 को कैसे डिवाइड किया है? 10,000, 14, 170, 8,330, ये तीनों को ऐड करो, you should get 32,500. Here also it is 32,500. LLP account gets tallied. और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है ना, ये LLP बिजनेस का नया कैपिटल है, जो कंट्रीब्यूशन है ये 10,000 ए का, 14,170 बी का, सी का 8,330 नए बैलेंस शीट में आएगा ये। ओके, अब बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? 2 बाई पार्टनर्स कैपिटल 2x ऑपोजिट अकाउंट का नाम 2x LLP 10,000, 14, 170, 8,330। इसके बाद ये टैली कैसे होगा? जरा ये कैश बैंक क्लोज करो, कैश बैंक को क्लोज करो, या तो इसको बंद करो, जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी टू कैश बैंक। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या रहेगा? कैश बैंक। कितना आ रहा है देखो, सी यहाँ पे हाउ मच यू आर गेटिंग? 18,000, 17,000, here it is 10,000। ये सेम इधर भी आ जाएगा, इधर कितना आ रहा है? 2,000, इधर कितना आ रहा है? 2,830, 1,670। ये 2 कैश बैंक हो गया बैलेंसिंग। तो 2 का ऑपोजिट बाय ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C. How much we are getting? 2,000 ऑपोजिट अकाउंट का। दूसरा क्या मिला? 2,830 and 1,670. Now see whether our cash bank account is tallying. 7,650, इधर भी सेम आना चाहिए। सी ये चारों को ऐड करके 7,650 आ रहा है। This ledger account is done. Now they have also asked us to prepare balance sheet. Balance sheet prepare करना है। So Mrs. X LLP, X Limited लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज जिसमें सबसे पहले आता है पार्टनर्स फंड। सबसे पहले आता है पार्टनर्स फंड, इसमें आता है कंट्रीब्यूशन रिसीव। ये तो हम लोग को पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? हाँ 32,500। बट वो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है दैट वी हैव टू शो हियर। ए का 10,000, बी का 14, 170, सी का
ऐड करेंगे तो 32,500. दिस इज हाउ मच? शेड्यूल नंबर 1, 32,500. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2 में, विच इज गो टू द पीसी. गो टू द पीसी. एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स को क्या बोलेंगे? ट्रेड. इट इज हाउ मच? 11,000. गो टू द क्वेश्चन. पीसी हमने फाइंड किया. पीसी में जो असेट्स है, पीसी में जो लाइबिलिटीज है वही लिखना है, बिकॉज एलएलपी बिजनेस ने वही असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है. सो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है. सो दिस इज कमिंग. नाउ कम टू द सेकेंड वन, असेट्स. असेट्स में आता है ग्रॉस असेट डेप्रीसिएशन. लेस करते हैं ग्रॉस फिक्स असेट से, बट क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन वो सब हमें नहीं पता, तो हम डायरेक्टली लेट अस राइट नेट फिक्स असेट्स. नेट फिक्स असेट के लिए नोट नंबर 2 में जाते, पीसी में जाओ, गो टू द परचेज कंसीडरेशन. कितना हमारे पास असेट्स है? फिक्स असेट कौन सा है? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, इंटेंजिबल. टैंजिबल इंटेंजिबल करेंगे तो ये अमाउंट ध्यान में रखना. 16,000. लेट अस फर्स्ट राइट हियर. तो यहाँ पे फिक्स असेट्स, पहले तो टैंजिबल. टैंजिबल में ये सबका अमाउंट बताओ. इसका अमाउंट है 16,000. 16,000. प्लांट एंड मशीनरी 8,250. फर्नीचर 1,000. फिर इसके बाद इंटेंजिबल. इंटेंजिबल में एक ही है, गुडविल, विच इज, ये सबको ऐड करो 27,250. सबको ऐड करो, इधर लिखेंगे 27,250. डन. अब इसके अलावा क्या असेट्स है? इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज है. और डेटर्स को क्या बोलेंगे? हाउ मच इज इन्वेंट्रीज? गो टू द पीसी. इन्वेंट्रीज है 3,900. डेटर है 12,350. बस इतना ही है. हाउ मच इज 3,900 ना स्टॉक. और डेटर्स है, इसके साथ बैलेंस शीट का क्या टोटल आता है? सो दोनों साइड में आ रहे हैं 43,500 with our balance sheet. Both sides we are getting the same amount. Both sides we are getting 43,500, means sum is tallied, sum done. Thank you very much everyone.